Hello students, this is your Shashank sir and today is the day 10th of ARC Learning Revision Program and today's topic is a very important topic, human health and disease. बहुत different types of questions आते हैं इधर से, disease के ऊपर, common disease के ऊपर भी question आते हैं, immunity से भी बहुत सारा disease questions आते हैं, ठीक है, थोड़ा conceptual है, थोड़ा रटना भी होता है, ठीक है. So we'll follow the basic pattern, we'll try to summarize the entire chapter NCERT, right, within an hour, right. So starting with what do you understand by हेल्थ, ठीक है. सो बाय डेफिनेशन जब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे हु, हाउ डज हु डिफाइन द हेल्थ, राइट. हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease, ठीक है, राइट. सो बाय डेफिनेशन हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, राइट. एक बंदे को डिजीज नहीं होगा, इट्स नॉट डिजीज, ही इज नॉट, दैट इज नॉट डिफाइंड एज हैविंग अ गुड हेल्थ. वो मेंटली भी फिट होना पड़ेगा, वो फिजिकली भी फिट होना पड़ेगा, वो इमोशनली भी फिट होना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या, बाय हु हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट merely the absence of disease, right. Now there are certain factors, day to day factors, ठीक है, genetic factors, right, livelihood factors that affect our health, right. So now how the health is summarized, the factors, what are the factors that affect the health, the factors that affecting health are पहला सबसे important genetic disorders, right. Genetic disorders which are inherited, right, inherited genetic disorders होगा तो the person is always a diseased person, ठीक है. Infections, जो हम लोग के infections होते रहता है, right, infections, this is caused by pathogens, they are caused by pathogens, ठीक है, as well as lifestyle, our diet, exercise and habits which include smoking and alcohol, and the most biggest cause of diseases, right, affecting health is our stress, ठीक है. So genetic disorders, inherited, which are inherited defects, infections which are caused by pathogens, and lifestyle which includes diet, exercise, smoking, alcohol and stress, ठीक है. These are the certain factors, these are the certain factors which affect our health. तो ये factors अगर body में रहते हैं, ठीक है, या फिर हमको affect कर रहे हैं, so we are not healthy, we are not healthy, ठीक है, right. Now how can we be healthy, how can we be healthy, we can be healthy if we have a balanced diet, ठीक है, if we can maintain our personal hygiene, regular exercise करें, awareness about the disease, what are the diseases, right, proper waste of disposals, control of vectors and vaccination, ठीक है. if we maintain balanced diet, ठीक है, if we maintain our personal hygiene, ठीक है, 50% of the diseases would be controlled here only, 50% of the diseases would be controlled here. thereafter if we have a regular exercise, ठीक है, एंड अगर हमको डिजीज के बारे में अवेयरनेस है, कैसा डिजीज है, कैसे आता है, कौन करता है, क्या नहीं करता है, thereby we can control the waste through which the diseases are coming, right, the vectors which are spreading the diseases, ठीक है, and thereafter the medications that is available. तो ये अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, so there are chances कि we will be able to prevent the disease that is going to affect our body. समझ में आया कि नहीं है, ठीक है. Now दिस वॉज द बेसिक ऑफ द फर्स्ट लाइन, राइट. मैं थोड़ा फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर जाना चाहता हूं कि जहां पे क्वेश्चन आते हैं कि वेयर वुड यू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ. सो व्हेन यू लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ, यहाँ पे सर्टेन इंफॉर्मेशन दे के रखे हैं, ठीक है, कि अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेटिस, ठीक है, एज वेल एज इन आवर इंडियन आयुर्वेदा, द सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड, ठीक है, दैट कि द स्टेट ऑफ द बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, सर्टेन बॉडी ह्यूमर्स बोले तो फ्लूइड, सर्टेन बॉडी ह्यूमर्स का अगर बैलेंस रहता है, देन द बॉडी इज सेड टू बी हेल्दी, राइट. ये किसका थिंकिंग था, क्वेश्चन आता है, हिपोक्रेटिस एज वेल एज इन द इंडियन आयुर्वेदा, ठीक है, राइट. नाउ यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है कि ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस रिजेक्ट कैसे हुआ, ठीक है. दिस वाज विलियम हार्वी, राइट, which using experimental method that demonstration of a normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the Goodhammer hypothesis, ठीक है. blood circulation, correct है, right, discovery of blood circulation, the discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and demonstrations of the normal body temperature in persons with black bile using thermometer disproved the Goodhammer hypothesis. तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस was believed by whom, early Greeks, Hippocrates, including our Indian Ayurveda. Good humor hypothesis was disapproved by whom, William Harvey. क्या स्टडी था, डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है. तो ये पहला पैराग्राफ से हम लोगों का क्वेश्चन आता है, ठीक है. नाउ इफ
the state of mind or if our health is affected. ठीक है, when functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected. When the functioning of one or more organs, the functioning of one or more organs or systems of the bodies is adversely affected. What are it? Characterized by appearance of various signs and symptoms. We say that we are not healthy. That means we have a disease. Statement based question आता है directly. क्या बोला? When functioning of one or more organs of the body is severely affected or adversely affected, which is characterized होगा due by certain symptoms, ठीक है, and signs. By various signs and symptoms, we say we have disease. Now, disease are broadly grouped into infectious and non-infectious. ठीक है, disease are broadly grouped into two parts, infectious and non-infectious disease. अभी infectious disease क्या है? Diseases which are easily transmitted from one person to another. One person to another अगर easily disease transmit हो जाता है, that is called as your infectious disease, right? Infectious diseases are very common and every one of us suffers from these at some times or the other, right? Some of the infectious disease like AIDS are fatal. Example देके रखा है, right? And the diseases which do not spread from one person to the other easily, which do not spread from one person to the other, those are non-infectious diseases. तो non-infectious diseases में such as cancer is the major cause of death. ठीक है, इसके अलावा डिजीज के अलावा भी जो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इज द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज. ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट्स आवर हेल्थ एडवर्सली. समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है. सो अगर हमारे क्या when the functioning of the one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by the appearance of some signs and symptoms, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिजीजेस. वी कैन ब्रॉडली ग्रुप द डिजीजेस इन हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स. ठीक है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस. इजीली जो स्प्रेड होगा इन्फेक्शियस, जो वन पर्सन टू वन पर्सन स्प्रेड नहीं होगा वो नॉन इन्फेक्शियस. Apart from infectious and non-infectious disease, what are the factors that can affect your health? That includes alcohol and drug abuse as well. समझ में आया कि नहीं है? ठीक है. Now, when you come to certain common diseases, हमको क्या मालूम चलेगा कि these are caused by pathogens. ठीक है. These disease causing organisms can be broadly classified based on our book कि हम लोग कौन से diseases देखेंगे? By bacteria, viruses, fungi, protozoans, helminths. ठीक है. So यहाँ पे पैथोजेंस क्लासिफाई करके देख रखा है इन आवर बुक. क्या क्या होगा? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआंस एंड हेलमिंथ्स. ठीक है, राइट. नाउ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये लोग ट्रांसमिट करते हैं? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, ड्रॉपलेट्स, वेक्टर्स, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर. ठीक है, राइट. So the mode of transmission that includes direct contact, indirect contact, that is the fomites. Then you have the droplets. Vectors includes insects and animals as well as contaminated food and water. ठीक है. Now these are the mode of transmission. Now coming to specific bacterial disease. Bacterial disease में पहला क्या पढ़ना है? टाइफॉइड. Now टाइफॉइड का पैथोजन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, सैल्मोनेला टाइफी. क्या है? टाइफॉइड का पैथोजन कौन है? इट्स अ बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी. व्हाट इज द मेन ट्रांसमिशन? contaminated food and water. Very important. The main transmission क्या है? It is contaminated food and water. What is the site of infection? Site of infection क्या है? The main site of infection is the small intestine and thereafter it migrates to other organs via blood. किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? Via blood. ठीक है. What are the symptoms? The symptoms include sustained high fever, कितना? 39 to 40 degree centigrade. Weakness, stomach pain, constipation, headache, loss of appetite, right? And in severe cases, you have the intestinal perforation and that may also occur. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है. So पहला क्या है? Typhoid. The first one of the diseases, common diseases, you get the typhoid. What is the pathogen? Salmonella typhi. क्या है pathogen? Salmonella typhi, right? It is a bacterium. What is the main transmission source? Contaminated food and water. What is the site of infection? Small intestine. उसके बाद it migrates to the other organs via blood. ठीक है. What are the symptoms? Symptoms include sustained high fever, 39 to 40 degree centigrade, 102 से 104 degree Fahrenheit, right? Weakness, stomach pain, constipation,
headache, loss of appetite, and in severe cases there would be intestinal perforation leading to death. ठीक है, आप डायग्नोज कैसे करोगे? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डू डायग्नोज द टाइफॉइड? विद द हेल्प ऑफ वाइडल टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ वाइडल टेस्ट. ठीक है, नाउ देयर आर सर्टेन कैरियर्स ऑफ द टाइफॉइड व्हिच उनको इफेक्ट नहीं करता है लेकिन सब इफेक्ट कर लेता है बाकी को. ठीक है, तो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल वाज टाइफॉइड मैरी, राइट? टाइफॉइड मैरी, शी spread this disease, right? She was the carrier and she spread the disease. ठीक है, so this was the first typhoid. उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद देखना है निमोनिया. The next one here is your pneumonia. What is the pathogen? Streptococcus pneumoniae. What is the pathogen? Streptococcus pneumoniae. Along with what is the next one? Haemophilus influenza. ठीक है, so दो pathogens देके रखा है. हाँ, कितना pathogens देके रखा है? 2. What is the first pathogen? The first pathogen is Streptococcus pneumoniae. What is the second pathogen? Haemophilus influenza. ठीक है, ट्रांसमिशन कैसे होगा? Inhaling droplets, aerosols from infected person. Infected person के कांटेक्ट में आने से ही ये ट्रांसमिट हो जाता है. ठीक है, by sharing of utensils. What is the site of the infection? The site of the infection of pneumonia is the alveoli of the lungs. Alveoli of the lungs, and the alveoli gets filled with fluid. वाटरी फ्लूइड जमा हो जाता है आपके लंग्स में. ठीक है, तो साइट ऑफ द इंफेक्शन इज द एल्वियोली, साइट ऑफ द इंफेक्शन इज द एल्वियोली, एंड द एल्वियोली गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड. व्हाट आर द सिम्टम्स? फीवर्स, चिल्स, कॉफ, हेडेक, and in severe cases lips and fingernails may turn gray to bluish. Lips and fingernails turns gray to bluish. होता क्या है कि एल्वियोली जब फिल्ड हो जाता है, प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पाता है. प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता है, दैट मींस ऑक्सीजन इज नॉट कमिंग इन, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गोइंग आउट. सो बॉडी में किसका? बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है व्हेन यू लुक एट योर लिप्स एंड योर नेल्स, राइट? इन दिस, आपको ऐसे, आप नेल्स को ऐसे प्रेस करोगे तो आपको ब्लड फ्लो दिखेगा ही, राइट? सो व्हेन डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंक्रीजेस, वो ब्लड का कलर ही चेंज होता रहता है, near to bluish to grayish, and that is why you can see in case of severe cases. ठीक है, इसके अलावा other bacterial diseases include dysentery, plague and diphtheria. क्लियर है? ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका वायरल डिजीजेस. नेक्स्ट आर वायरल डिजीजेस. वायरल डिजीजेस में आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे बढ़िया क्या है? कॉमन कोल्ड. सबसे बढ़िया क्या है? कॉमन कोल्ड, राइट? द पैथोजन क्या है? राइनोवायरस. राइनोवायरस, दीज आर ग्रुप ऑफ वायरसेस. ठीक है, दीज आर ग्रुप ऑफ वायरसेस. सो एवरी नाउ एंड देन आपको कोल्ड कैच करता ही है, राइट? सो कोल्ड कैच करने का मतलब ये है कि देयर इज अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ वायरसेस है, उसका कोई मेडिसिन भी नहीं है. समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, राइट? सो दैट इज कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड पैथोजन, दीज आर राइनोवायरसेस, दीज आर ग्रुप ऑफ वायरसेस, दीज आर ग्रुप ऑफ वायरसेस, राइट? ट्रांसमिशन कैसे होता है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कॉफ, स्नीज, कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, तो अगेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, राइट? ये क्या हो सकता है? ये स्प्रेड हो सकता है इजीली. ठीक है, राइट? द साइट ऑफ इन्फेक्शन इज nose and respiratory passage and not the lungs. This is emphasized. Why? Pneumonia में क्या इन्फेक्ट हो रहा था? लंग्स इन्फेक्ट हो रहा था, नॉट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज. यहाँ पे इन कॉमन कोल्ड क्या इफेक्ट हो रहा है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट दी लंग्स. डिफरेंस पूछता है. ठीक है, राइट? व्हाट आर द सिम्टम्स? नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, hoarseness, cough, headache, tiredness. ठीक है, and it usually lasts for 3 to 7 days. ठीक है. Other viral diseases includes influenza, polio, dengue, chikungunya, AIDS. ठीक है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, डिटेल्स में, राइट? नाउ सो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या देखना है? कॉमन कोल्ड. पैथोजन क्या है? राइनोवायरस. दिस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस. ट्रांसमिशन क्या है? इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कॉफ एंड स्नीज, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन. साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज एंड नॉट द लंग्स, क्योंकि ये एम्फसाइज इसलिए किया गया है कि न्यूमोनिया में लंग्स इन्फेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट नहीं. लेकिन यहाँ पे कॉमन कोल्ड में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट हो रहा है, नॉट द लंग्स. Symptoms: nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache, and tiredness, which usually lasts for about 3 to 7 days. And the other viral diseases: influenza, polio, dengue, chikungunya, ठीक है, and AIDS ये included है. Clear है? Okay. उसके बाद very very important is the protozoan disease. Protozoan disease में मेरे को पहला क्या देखना है? मलेरिया. Very very important, मलेरिया. ठीक है,
नाउ इसका पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम, ठीक है। द पैथोजन फॉर मलेरिया इज प्लाज्मोडियम एंड 3 स्पीशीज आर देयर, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलिडी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, राइट। सो पैथोजन कौन है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलिडी एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, 3 स्पीशीज आर देयर, जिसमें से प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कॉजेस मैलिग्नेंट मलेरिया। और इसमें वेक्टर कौन सा है? वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। वेक्टर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, राइट। नाउ व्हेन यू लुक एट दिस, ठीक है, कि ये जो प्लाज्मोडियम है, द प्लाज्मोडियम इज ए डायजेनेटिक पैथोजन और डायजेनेटिक पैरासाइट है, ठीक है। ये डायजेनेटिक क्यों है? बिकॉज इट हैज 2 होस्ट। इसका पास क्या है? दीज आर 2 होस्ट, इट रिक्वायर्स 2 होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है। इट रिक्वायर्स 2 होस्ट, वन इज अ प्राइमरी होस्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वन इज अ सेकेंडरी होस्ट जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, करेक्ट है, राइट। व्हिच इज द प्राइमरी होस्ट? प्राइमरी होस्ट इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो इसका वेक्टर कौन है? इसका कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है, राइट। सो इट इज स्प्रेड विद द बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस। सो प्राइमरी होस्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें होता है फीमेल एनोफिलिस, whereas the secondary host asexual reproduction में होता है जिसमें ह्यूमंस आता है। इन केस ऑफ द प्राइमरी होस्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फीमेल एनोफिलिस के कहां पे हो रहा है? इन स्टोमक। कहां पे होता है? इन स्टोमक। whereas in case of humans पहले कहां पे इफेक्ट होता है? लिवर। दूसरा कहां पे इफेक्ट होता है? आरबीसी। दूसरा कहां पे इफेक्ट होता है? आरबीसी, ठीक है। when you summarize it, the infective stage of malaria in humans is the स्पोरोजॉइड। ह्यूमंस में इन्फेक्टिव स्टेज कौन है? स्पोरोजॉइड। अब ये स्पोरोजॉइड जाके कहां पे अटैक करता है? लिवर में। लिवर सेल में जब जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना? दिस इज द प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, दिस इज द फर्स्ट। व्हेन द स्पोरोजॉइड्स इन्फेक्ट द लिवर सेल, क्या साइकिल बोलोगे हम लोग इसको? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। व्हाट साइकिल इट इज? प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, राइट। लिवर सेल में ये मल्टीपल फिशन करता है, फॉर्मिंग अ स्टेज नोन एज द स्किजॉइंट स्टेज, ठीक है। आफ्टर दे बर्स्ट फ्रॉम द लिवर सेल, they from the cryptomerozoites. Now these cryptomerozoites now enter the RBC. They will start to infect the RBC. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। इसको क्या साइकिल बोलेंगे? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। Now once it enters the RBC में ये पहले क्या एक सिग्नेट रिंग स्टेज करता है, सिग्नेट रिंग स्टेज इनसाइड द एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। The first it does, it causes a signet ring stage जहां पे न्यूक्लियस टॉप में चला जाता है and it is looking like a ring, signet ring stage। उसके बाद they take the shape of an amevia, this is the trophozoan stage और इसको infective stage बोलते हैं, this is the infective stage। now this trophozoan क्या करता है? ये कंज्यूम करता है, ये खाना कंज्यूम करता है। खाना क्या कंज्यूम करेगा? तुम आपके आरबीसी में है ही क्या? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में सारा ग्लोबिन पार्ट ये कंज्यूम कर रहा है, हीम को सेपरेट करके रख रहा है, ठीक है, राइट। सो इट कॉजेस द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन वेयर इट कंज्यूम्स द ग्लोबिन एंड हीम क्या होता है? जमा हो जाता है, राइट। जमा होने के साथ साथ दिस हीम कन्वर्ट्स इनटू हेमाटिन व्हिच इज टॉक्सिक एंड आफ्टर कंप्लीटिंग मल्टीपल फिशन, राइट, द आरबीसी बर्स्ट होके मेरोजॉइड्स रिलीज हो जाता है। जब ये आरबीसी बर्स्ट होता है दे रिलीज द हेमाटिन that causes the symptoms of malaria, what is the symptom of malaria? gap देके fever आना, fever with chills but with a gap, 2 days 3 days gap 4 days gap, ठीक है, right, sorry 2 days gap 3 days gap, तो थर्ड डे फीवर फोर्थ डे फीवर आता है, ठीक है। तो ये जो चिल के साथ फीवर आता है ये टाइम इसीलिए रहता है क्योंकि ये पहले ये आपका ये एरिथ्रोसाइटिक साइकिल कंप्लीट होगा, जब ये आरबीसी फटेगा मेरोजॉइड्स निकलेगा तभी जाके हेमाटिन रिलीज होगा, दैट कॉजेस दी सिम्टम्स ऑफ मलेरिया। अभी ये मेरोजॉइड्स जाके वापस लिवर सेल में जा सकता है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के लिए, या फिर ये फिर से आरबीसी को इन्फेक्ट कर सकते हैं एरिथ्रोसाइटिक साइकिल के लिए, या फिर इट विल कन्वर्ट इनटू माइक्रोगैमेट्स एंड मैक्रोगैमेट्स, व्हिच विल बी पिक्ड अप बाय अनदर फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। जब ये लेता है, राइट, देन the life cycle starts in the primary host, so in stomach कहां पे हो रहा है? in stomach of the female anopheles। so microgamete and macrogamete undergoes X flagellation, mitosis होता है, male gamete बन जाता है, macrogamete undergoes mitosis,
which forms the female gamete and a polar body, right? Then male gamete female gamete का fertilization हो गया, they form some motile zygote that is called as a ookinete form हो गया. After the ookinete form, the ookinete embeds itself into the wall of the stomach, जिसपे पहले meiosis करेगा, फिर mitosis करके number निकालेगा, and it forms sporozoites. क्या form करेगा? Sporozoites. And afterwards it bursts open the stomach cell and it travels towards the what? It travels towards the salivary gland. तो अभी फीमेल मॉस्किटो के salivary gland में क्या हो गया? आपका क्या हो गया? पूरा sporozoites हो गया. And now when the infected female anopheles goes and bite a normal human, तो यही sporozoites enter करके it will start the cycle, right? It will start the cycle. ठीक है? तो ये हो गया आपका क्या? This is your लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया. दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया. ठीक है? तो यहाँ पे एक सिंपल वे पे इसको समराइज करके रखा है कि द लाइफ साइकिल स्टार्ट्स विद व्हाट? द स्पोरोजोइट. दिस इज द इन्फेक्शियस फॉर्म. इट इज इंजेक्टेड बाय द मॉस्किटो बाइट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होगा? इट रीचेस द लिवर सेल्स वेयर इट मल्टीप्लाई, कॉजेस द asexual reproduction and thus this is happening in what? In the secondary host. ठीक है? So sporozoites, this is the infectious form. It is injected by the mosquito bite. It reaches the liver cells where they multiply asexually. Secondary host. It bursts. Third में क्या होता है? The liver cells burst and it releases into the blood. ठीक है? So this includes the pre-erythrocytic cycle. प्री-एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हो गया. ठीक है? उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेज फोर्थ स्टेप में क्या करेगा? दे इन्वेड द रेड ब्लड सेल्स, राइट? अगेन दे मल्टीप्लाई एसेक्सुअली एंड दे फॉर्म द मेरोजोइट्स. ठीक है? once the RBC bursts, right, it releases hemozoin, which is toxic substance causing chills and high fever recurring every third to fourth day. 3-day fever and the 4th day fever. ठीक है? released parasites infect new RBCs. तो ये एंटर क्या हो गया? एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. दिस इज द एरिथ्रोसाइटिक साइकिल. इसके बाद some develops into the gametocytes, male and female in RBCs. ठीक है? Mosquito bites, this is the 7th and 8th. Mosquito bites infected person and ingests the gametocytes with blood. Blood के साथ वो ले लेता है. Now fertilization कहाँ पे हो रहा है? And development occur in the mosquito's guts. Fertilization and development occurs into the mosquito's gut. ठीक है? तो यहां से हमारा क्या हो रहा है? यहाँ पे लाइफ साइकिल इन दी प्राइमरी होस्ट बन रहा है. यहाँ पे लाइफ साइकिल क्या बन रहा है? प्राइमरी होस्ट. ठीक है? Fertilization and development occur in the mosquito's gut. Sporozoites formed migrate to the mosquito's salivary gland, ready to infect another human. ठीक है? Clear है? So in 10 steps, these 10 steps summarize the life cycle of your malaria. ठीक है? Symptoms तो वही है, high fever recurring at interval, chills. What is the control? malaria का control आप vectors को control करो, आप इरेडिकेट वेक्टर को कंट्रोल करो, तो मलेरिया का सिम्टम्स या मलेरिया होने का चांसेस रिड्यूस हो जाता है. ठीक है? क्लियर है? समझ में आया? सो दिस वाज योर मलेरिया. नेक्स्ट क्या आएगा? व्हाट कम्स द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज द एमीबॉइक डिसेंट्री या फिर एमीबॉइसिस. एमीबॉइक डिसेंट्री और एमीबॉइसिस. ठीक है? तो पैथोजन कौन है? एंटामोबा हिस्टोलाइकाइटिस प्रोटोजोआन. ओके. व्हाट इज द ट्रांसमिशन? फीको ओरल रूट. ठीक है? That means contaminated food and water, fecal matter के साथ, infected person के fecal matter से ये release होता है, right? Here you have mechanical carriers. ये mechanical carriers क्या है? Houseflies. These are houseflies. Houseflies acts as mechanical carriers. That means ये जो पैथोजन है ये housefly को affect नहीं कर रहा है. Housefly is just the carrier here. ठीक है? तो वो infected person के fecal matter में बैठता है, वहां पे जो infective stage है tetranuclear cyst को उठाता है. ठीक है? एंड इट सिट्स ऑन द फूड एंड वाटर जिसमें कंटेमिनेट करता है. एंड वन ह्यूमंस कंज्यूम दोस फूड एंड वाटर, द टेट्रान्यूक्लियर cyst एंटर इन द स्टमक एंड इट स्टार्ट्स इट्स डिजीज. ठीक है? सो द साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. ये ध्यान रखिएगा. साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. व्हाट आर द सिम्टम्स? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, stools with excess mucus and blood clot. ठीक है? Right? So summarized version, this is the infective stage or the tetranucleosis जो एक हाउसफ्लाई उठा के लेके आता है. ठीक है? The housefly
राइट, कैरीज इट टू दी फूड एंड वाटर, और उधर से जब ह्यूमन इसको कंज्यूम करता है, सो द टेट्रान्यूक्लियोटाइड्स दे इट एंटर्स द बॉडी। जब ये स्टोमक में जाता है, स्टोमक में जाता है तो इसका जो सिस्ट है राइट, ये डाइजेस्ट कर लेता है, कौन, स्टोमक के HCl ने, HCl इसको डाइजेस्ट कर लेता है राइट, एंड द सिस्ट एंटर्स द व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन, द सिस्ट एंटर द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अभी ये लार्ज इंटेस्टाइन में ये 4 की जगह 8 हो जाता है, ठीक है, एंड इट फॉर्म्स 2 स्टेजेस, वन इज द मैग्ना एंड वन इज द माइन्यूटा। मैग्ना इज द पैथोजेनिक, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी टिश्यूज को इफेक्ट करेगा, एंड इट्स सिम्टम्स जैसे फ्लैग शेप्ड अल्सर, ब्लीडिंग, क्रैम्प्स एक्सेट्रा करवाता है, ठीक है। व्हेयरएज माइन्यूटा इज द नॉन पैथोजेनिक, ये डिवीजन करके टेट्रान्यूक्लियोटाइड सिस्ट बनता करता है, दैट इज पास्ड आउट विद द फीकल मैटर एंड एज इट इज डिफेकेटेड इन द ओपन राइट, तो उधर से हाउस फ्लाई इसको उठा के फिर से यही साइकिल कंटिन्यू करेगा, करेक्ट है। सो दिस वाज द एमीबोसिस, ये क्या था, दिस वाज द एमीबोसिस, क्लियर है, ओके राइट। सो लास्ट में क्या आता है, फंगल डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज। फंगल डिजीज में क्या देखना है, रिंगवर्म, क्या देखना है, रिंगवर्म। सो पैथोजेन फंजाई ऑफ जेनेरा क्या क्या, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। ट्रांसमिशन फ्रॉम सॉइल और बाय यूजिंग टॉवल्स एंड क्लोथ्स कॉम्ब ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेशंस ऑन स्किन, नेल्स, स्कैल्प, ठीक है, इंटेंस इचिंग राइट, इंटेंस इचिंग, तो दीज आर द सिम्टम्स। और हीट एंड मॉइस्चर हेल्प इन फंजाई टू ग्रो, इसीलिए जहां पे आपका स्किन फोल्ड ज्यादा है, जहां पे आपका स्किन फोल्ड ज्यादा है, या फिर स्वेटिंग जहां जहां पे एक्सेसिव होता है, वहां पे ही क्या होता है ना, द चांसेस ऑफ दिस फंजाई ग्रो, सो ग्रो इन बिटवीन टोज में ये बेसिकली मिलता है, ठीक है। दिस वाज द फंगल डिजीज राइट। कमिंग टू द लास्ट, दिस इज द हेलमिंथिक डिजीज। इन द कॉमन डिजीज, हेलमिंथिक डिजीज में 2 पढ़ना है, एक आपका एस्केरिसिस, एक आपका फिलेरियासिस। नाउ पैथोजन, एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक है, एस्केरिसिस लुम्ब्रिकॉइड, दीज आर द इंटेस्टिनल राउंडवॉर्म। ये क्या है, इंटेस्टिनल राउंडवॉर्म। व्हाट इज द ट्रांसमिशन, अगेन फिक्यो ओरल रूट, दैट मींस कॉन्टेमिनेटेड फिकल से, फिकल मैटर से, जब ये आपका वाटर कॉन्टेमिनेट होगा, वेजिटेबल्स फ्रूट्स कॉन्टेमिनेट होगा, वहीं से हम लोग इसको पिकअप करते हैं। एग्स एक्सक्रीटेड विद द फीसिस contaminated soil and ultimately when you consume this contaminated things, तो आपका यहाँ पे ये इफेक्ट करेगा। सिम्टम्स क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर प्लेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज, क्लियर है, ठीक है। सो सिम्टम्स इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ओके। नाउ फिलेरियासिस, नेक्स्ट वाला क्या है, दिस वाज 1, नंबर 2 इज फिलेरियासिस। फिलेरियासिस क्या है, दिस इज आल्सो नोन एज एलिफेंटाइसिस, ठीक है। व्हाट इज दिस पैथोजन, यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी एंड यूचेरिया मेलाई, ऑल दीज आर फिलेरियल वर्म्स। तो यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी एंड यूचेरिया मेलाई। वेक्टर, व्हिच इज द कैरियर वेक्टर हियर, दिस इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, दिस इज फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। व्हाट आर द सिम्टम्स, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन्स वेयर दे लिव, यूजुअली कहां पे, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स कॉजिंग ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, राइट। पैर पूरा एकदम एक्सपांड होके एलिफेंट की तरह हो जाता है, इसलिए एलिफेंटाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जेनिटल ऑर्गन्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड, जेनिटल ऑर्गन्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड इन बोथ मेल एंड फीमेल, इन बोथ मेल एंड फीमेल में अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो these are your common diseases, these are your common diseases। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर मैट्रिक्स मैच टाइप ऑफ क्वेश्चन देता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इस साल आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से आपको मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा, पूरा पॉइंट टू पॉइंट है, एक बार रीडिंग दीजिएगा इसको, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है, ओके। सो नाउ ठीक है, व्हाट आर दी इन प्रिवेंशन मेथड, आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू प्रिवेंट, ठीक है। बेसिकली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपका आ ही जाएगा, पर्सनल हाइजीन, कीप आवर बॉडी क्लीन, कंज्यूम क्लीन फूड एंड वाटर, public hygiene, proper waste disposal, periodic cleaning of water reservoirs, standard practices in handling food, vector control, very very important, vector control, eradicating vectors, mosquitoes, drainage, stagnant water, insecticides, introducing larvicerous fish like gambusia, using nets and repellents। तो gambusia जैसे fish को भी अगर आप introduce करते हो, right, जहां पे stagnant water है तो वहां पे वो लोग mosquito larvae को खाते हैं,
करेक्ट है। एंड देयर आफ्टर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये तो होता ही है, ठीक है। बट द मोटो शुड ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, this should be the always the motto, prevention is better than cure, ठीक है। तो these are the certain ways that we can prevent the disease from occurring, और अगर disease हो गया तो हमको क्योर लेना पड़ेगा, ठीक है। now coming to the next part of this chapter is it deals with what, immunity, that is the main part, ठीक है। now how do you define immunity? it is the ability of the body to defend against infection, ठीक है। it is the ability of the body to defend against infection, right, caused by pathogens, ठीक है, and in which our immune system helps, in which our immune system helps. So it is the ability of the body, it is the ability of the body to defend us, it is the ability of the body to defend ourselves from infections occurring from foreign organisms, pathogens, and this ability is conferred by whom? Our immune system, that is called as immunity. Now this immunity is again divided into two parts, एक आपका इम्यूनेट इम्यूनिटी है जो ऑलरेडी आप में प्रेजेंट है, और दूसरा आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है जो एक्सपीरियंस के थ्रू आउट द लाइफ आपके बॉडी में बनता है, ठीक है, राइट। सो बाय बर्थ the immunity that you have is the innate immunity, and what you acquire over your lifetime becomes your acquired immunity. So the what are the two types of immunity is there? Innate immunity and acquired immunity. क्या क्या है? Innate immunity and acquired immunity, ठीक है। So when you come to innate immunity, right, so directly ये या कुछ points आपको याद करके रखना है, you have to remember certain points, ठीक है, कि the first thing is that the innate immunity is present at birth, the innate immunity is present at birth, whereas acquired immunity is acquired throughout the life, acquired immunity is acquired throughout the life, ठीक है। so innate immunity is present at birth, whereas acquired immunity is acquired throughout the life, clear है। next thing, innate immunity क्या है? innate immunity is external, it is external and non specific, right। second, ये internal भी है, again non specific. so innate immunity is again divided into two parts, external and internal, right, external internal immunity, but both type of immunity are non-specific. Non-specific बोले तो that means they do not differentiate between what kind of organism, what kind of pathogens are there. सबके लिए, be it virus, be it bacteria, be it any other organisms, the response would be the same. The response would be the same. There is no discrimination in response. Whereas when you look at acquired immunity, it is internal and the responses are specific. Clear है? So innate immunity external, non-specific, internal, non-specific. Whereas acquired immunity is internal but it is specific. Now when you come to innate immunity का external में आपको क्या मिल जाएगा? Physical barrier, the first line of defense, body का first line of defense. This physical barrier includes skin, mucous membrane, ठीक है, पूरा बॉडी किधर कवर है? स्किन, और जहां जहां आपका स्किन नहीं है वहां उस गैप में क्या रहेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन रहेगा. सो दीज आर द फर्स्ट लाइन, दैट इज द फिजिकल बैरियर्स. उसके बाद फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में म्यूकस, सलाइवा, टीयर्स, ठीक है, which contains lysozyme, very very important. Mucus, saliva, tears which contain lysozyme. HCl in stomach which kills the pathogen, ठीक है. So these are physiological. So external non-specific में क्या है? External non-specific में physical barriers में क्या क्या आएगा? Skin, mucous membrane. Physiological barrier में mucus, saliva, tears, HCl. Clear है? Coming to internal and non-specific, at the cellular level जो internal innate immunity है वो क्या क्या आ जाएगा? Cellular barrier आ जाएगा, swellings आ जाएगा, fever आ जाएगा, साइटोकाइन बैरियर आ जाएगा, ठीक है. सो इंटरनल नॉन स्पेसिफिक में आपको क्या मिलेगा? सेलुलर बैरियर्स, स्वेलिंग्स, फीवर, साइटोकाइन बैरियर. क्या क्या? सेलुलर बैरियर्स, स्वेलिंग्स, फीवर एंड साइटोकाइन बैरियर. सो सेलुलर बैरियर्स में फैगोसाइटिक, यू हैव टू रिमेंबर, सेलुलर बैरियर में फैगोसाइटिक बैरियर्स रहेगा एंड नॉन फैगोसाइटिक बैरियर्स रहेगा. फैगोसाइटिक बैरियर्स में आपको ब्लड में न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेज हो बन जाएगा. These are macrophages, ठीक है, which gives the innate immunity का पार्ट है. फैगोसाइटिक, नॉन फैगोसाइटिक में आपको
अच्छा, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, वेरियस टिश्यूज में टिश्यू स्पेसिफिक आपको फेगोसाइट्स मिल जाएगा, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स, कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, कफर सेल्स। क्लियर है? सो दीज आर स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक, वेरियस जो नॉन स्पेसिफिक है, दिस इंक्लूड्स न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स इन द ब्लड। नॉन फेगोसाइटिक बैरियर में सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्या है? नेचुरल किलर सेल्स या फिर एनके सेल्स। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, द कैंसरस सेल्स को ये डिटेक्ट एंड एलिमिनेट कर सकता है, ठीक है। सो नॉन फेगोसाइटिक में आपका नेचुरल किलर सेल्स भी चला आता है, राइट। नाउ कमिंग टू स्वेलिंग्स, स्वेलिंग्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है? से इन केस ऑफ इंज्यूर्ड टिश्यू, इन केस ऑफ इंज्यूर्ड टिश्यू, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट, जब ये टिश्यू इंज्यूर्ड होता है, दिस इंज्यूर्ड टिश्यू, करेक्ट है, दो चीज करवाता है। एक तो पहला, इट रिलीजेस व्हाट? इट रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, इट रिलीजेस प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, राइट। सो प्रोस्टाग्लैंडिन्स जब रिलीज करता है, इट एक्टिवेट्स द पेन रिसेप्टर्स, इसलिए जब आप गिर जाते हो, राइट, पेन फील होता है ना, करेक्ट है, कहीं पे इंजरी हो गया, सो इट एक्टिवेट्स द पेन रिसेप्टर्स, एंड सेकेंडली इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मास्ट सेल्स, स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ मास्ट सेल्स। अभी मास्ट सेल्स क्या रिलीज कर देता है? मास्ट सेल्स रिलीज करता है हिस्टामाइन, मास्ट सेल्स रिलीज करता है हिस्टामाइन व्हिच इज अ vasodilator, ठीक है, राइट। सो व्हेन द मास्ट सेल रिलीजेस हिस्टामाइन, it causes the swelling, it causes the blood vessels to dilate। ब्लड वेसल्स क्या करता है? डायलेट करता है, और ब्लड वेसल्स जितना भी डायलेट करता है, ब्लड वेसल्स तो वैसे ही परफोरेटेड थे, ठीक है, राइट, ब्लड वेसल्स वैसे ही परफोरेटेड थे, जितना ब्लड वेसल्स डायलेट होगा उतना ही परफोरेशंस ओपन होगा, एंड इट कॉजेस द रिलीज ऑफ द फ्लूइड, इट कॉजेस द रिलीज ऑफ द फ्लूइड अराउंड द इंज्यूर्ड टिश्यू, एंड एज द फ्लूइड रिलीजेस इट कॉज द स्वेलिंग। क्या होता है? स्वेलिंग होता है। और इसी ब्लड में क्या फ्लोट कर रहा था? मैक्रोफेजेस। जब परफोरेटेड होगा एमीबॉइडल मूवमेंट से, ये मैक्रोफेजेस बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकल जाके इफ एनी पैथोजेंस दैट हैव माइट हैव एंटर्ड फ्रॉम द इंज्यूर्ड टिश्यू अगर आता है, उसको वो क्या करता है? मार देता है। समझ में आया कि नहीं है? करेक्ट है। इसलिए व्हेनेवर देयर इज अ कट, आप गिर गए, कट हो गया, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है अलोंग विद पेन। पेन इसीलिए आता है सो दैट यू डू नॉट टच इट, ठीक है, एंड द बॉडी गेट्स टाइम टू रिकवर, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्वेलिंग्स हेल्प इन प्रोवाइडिंग यू एन इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। अच्छा, यहां पे तो जब टॉक्स बैक्टीरिया से सपोज कुछ एक्सटर्नल आ गया, बाय फैगोसाइटोसिस आप मर गए। व्हाट अबाउट द टॉक्सिन्स? टॉक्सिन्स क्या करते हैं? अभी पैथोजेंस जब टॉक्सिन रिलीज करते हैं, हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स है, पैथोजेंस जब टॉक्सिन्स रिलीज कर देता है, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आल्सो रिलीजेस समथिंग नोन एज इंटरल्यूकिन 1, ठीक है, इंटरल्यूकिन 1। जब ये टॉक्सिन्स और इंटरल्यूकिन 1 में, टॉक्सिन्स और इंटरल्यूकिन 1 में जब फाइट होता है, राइट, they create something that is known as pyrogens, they create something that is known as pyrogens। बॉडी में जितना पायरोजेंस प्रोड्यूस होगा, राइट, उतना ही कौन स्टिमुलेट होगा? हाइपोथैलेमस। उतना ही कौन स्टिमुलेट होगा? हाइपोथैलेमस। एंड इफ यू रिमेंबर, हाइपोथैलेमस क्या है? थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितना उसको दिखेगा कि बॉडी में पायरोजेंस बढ़ रहा है, हाइपोथैलेमस क्या करता है? टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस। द आइडिया इज, जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉडी में, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर इट विल डाई ऑफ। समझ में आया कि नहीं आया? सो इट कॉजेस द बॉडी टेम्परेचर टू राइज। द आइडिया इज, द मोर द बॉडी टेम्परेचर, द लेस इज द माइक्रोबियल ग्रोथ। एंड दस, अगर इंफेक्शन की वजह से आपका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, वी कॉल इट एज अ फीवर, वी कॉल इट एज अ फीवर। सो फीवर इज ऑल्सो अ इनेट इम्यून रेस्पॉन्स, फीवर इज ऑल्सो अ इनेट इम्यून रेस्पॉन्स। समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट है। The last part of the innate is the cytokine barriers, very very important। ये इंटरफेरॉन्स है, नए क्लासेस ऑफ ट्रीटमेंट, मेडिसिन, राइट, थेरेपीज में ये यूज होता है इंटरफेरॉन। नाउ इंटरफेरॉन क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ठीक है, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सीक्रेट प्रोटीन्स कॉल्ड एज इंटरफेरॉन्स which protect non infected cells from further viral infection। सो एक वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ही क्या रिलीज करता है? इंटरफेरॉन्स रिलीज करता है। अभी ये इंटरफेरॉन्स जाके दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में जाके, दूसरे नॉन इन्फेक्टेड सेल्स में जाके नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, सो दैट द वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट इट, ठीक है, क्लियर है। सो ये वायरस के स्प्रेड मैकेनिज्म को रोकता है, दैट इज व्हाई these are now considered as novel method in treating viral diseases। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों का क्या खत्म होता है? यहां तक हम लोगों का इनेट इम्यूनिटी खत्म होता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने क्या बोला? इट इज इंटरनल एंड इट इज स्पेसिफिक, इट इज इंटरनल एंड स्पेसिफिक, ठीक है।
नाउ देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स दैट acquired immunity has. एक तो ये it is acquired through experience over the throughout your life, and also there are certain characters जैसे specific बोलता है ना, specificity. What are the characters? The first and the foremost character, it is specific. Specific का मतलब क्या है? It shows specificity against foreign bodies and pathogens. फॉरेन बॉडीज एंड पैथोजेंस. फॉर एग्जांपल इफ आई से कि अगर बॉडी में एक बैक्टीरिया आता है, बॉडी में एक वायरस आता है, फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोथ सिंस बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट, वायरस के लिए रिस्पॉन्स अलग होगा, बैक्टीरिया के लिए रिस्पॉन्स अलग होगा. तो जितना टाइप ऑफ इंफेक्शन आएगा सबके लिए रिस्पॉन्स क्या होगा, डिफरेंट है. क्लियर है? सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट, स्पेसिफिक. इट शोज स्पेसिफिसिटी अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज, व्हिच इज फॉलोड बाय डाइवर्सिटी. दैट मींस डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्स पैथोजन आएगा, फॉरेन ऑर्गेनिज्म आएगा, डाइवर्स स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा. जितना स्पेसिफिक पैथोजन उतना ही स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. दैट मींस स्पेसिफिसिटी एंड डाइवर्सिटी. दूसरा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी याद रखता है कि उसने किसके साथ फाइट किया है. सो अगर सेकेंड टाइम अगर वो आए तो उसको इजीली हरा सके. समझ में आया कि नहीं आया? सो it is based on memory. And lastly, it is discriminatory. ये discriminatory क्या है? It has the ability to differentiate between self and non-self. Acquired immunity has the ability to differentiate between self and non-self. This is required so that your own immune system does not attack you. Clear है? Right? So what are the four characters? What are the four characters that acquired immunity show? The four characters include specificity, हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर फॉरेन डिजीज के लिए, हर फॉरेन चीज के लिए स्पेसिफिक रिस्पॉन्स. सेकेंड, डाइवर्सिटी, जितना डिफरेंट नंबर ऑफ पैथोजन है उतना ही डिफरेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स. थर्ड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज बेस्ड ऑन मेमोरी. ये मेमोरी के ऊपर काम करता है. फर्स्ट टाइम लड़ लिया, उसके बारे में पूरा डिटेल्स याद रखेगा. सेकेंड टाइम आएगा, दैट डिजीज वुड नेवर स्टैंड अ चांस. एंड सेकेंडली, इट इज डिस्क्रिमिनेटरी. ये it has the ability to distinguish between self and non-self. Clear है? So these are the four characters. These are the four characters of acquired immunity. ठीक है? Now अभी इस acquired immunity में आपका ये जो memory based है ना, memory based की वजह से दो चीजें होते हैं. There is something known as the primary response of the acquired immunity. There is something that is known as the secondary response of the acquired immunity. अभी primary response में क्या होता है? It is the first encounter. It is the first encounter with the pathogen. First time जब encounter होता है. ठीक है? Right. Now क्या क्या कैरेक्टर है प्राइमरी रेस्पॉन्स का? The response is of low intensity. The response is of low intensity. First time आने के साथ साथ why it is of low intensity? Because ये बॉडी जो होता है ना, ये ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है, स्टडी करके इसका डिटेल बनाता है. एक तो ये इम्यूनोग्लोबिन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है, उसके बाद ये मेमोरी सेल्स भी जनरेट करता है. समझ में आया कि नहीं आया? राइट. एंड जब एंटीबॉडी ये जब जनरेट होता है तब जाके ये मारता है, लेकिन इसका एक डिटेल वो क्या याद रख रहा है, मेमोरी में रख लेता है. ठीक है? राइट. नाउ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट सेल्स? प्लाज्मा सेल्स. एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट सेल्स? प्लाज्मा सेल्स. एंड मेनली प्राइमरी रेस्पॉन्स में कौन सा एंटीबॉडी मेनली रेस्पॉन्स होता है? IgM. द लार्जेस्ट एंटीबॉडी दैट यू हैव, IgM. ठीक है? So primary response क्या है? Primary response is the first encounter with a pathogen or the foreign body. The response is of low intensity. The antibody is produced by plasma cell. And what is the antibodies involved? Primarily कौन antibody होता है? IgM. Secondary response में जब same pathogen दूसरे बार आता है, secondary response में जब सेम पैथोजन दूसरे बार आता है, मैंने क्या बोला? प्राइमरी टाइम में क्या हुआ? जो पैथोजन आया उसको स्टडी किया गया था, उसका डिटेल्स रखा गया था. नाउ डिटेल्स के साथ मेमोरी जनरेट हो गया. नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, द सेकेंडरी रेस्पॉन्स कम्स कि उसके साथ ऑलरेडी तो हमने फाइट कर चुका है, वी नो व्हाट वी रिक्वायर टू किल इट. सो द सेकेंडरी रेस्पॉन्स इज ऑफ अ वेरी हाई इंटेंसिटी. ठीक है? द सेकेंडरी रेस्पॉन्स कब होता है? जब इज द सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन. The response is now of higher intensity. And the antibody is produced by whom? The antibody is produced by memory cell. ठीक है? And the antibody involved is IgG. And it is produced in much higher number as compared to IgM. इसलिए secondary response बहुत ही fast and effective होता है.
ठीक है, एक समराइज्ड वर्जन है, राइट, कि व्हेन द फर्स्ट एनकाउंटर और सेकंड एनकाउंटर या फिर प्राइमरी रेस्पॉन्स में, प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स, प्राइमरी रेस्पॉन्स में टाइम क्यों लगता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स में टाइम क्यों नहीं लगता है. प्राइमरी रेस्पॉन्स व्हेन द पैथोजन एंटर्स, it interacts with the B lymphocyte, the cell has to divide. The cell divides into plasma cell and memory cell. Plasma cell produces the antibody and this antibody is responsible for killing the pathogen, whereas the memory cell generated keeps the memory of this pathogen. In the second case, when the same pathogen enters, right, in the secondary response आपका ये B lymphocyte के साथ interaction, cell division into plasma and memory cell का कोई चक्कर नहीं है. क्या है, मेमोरी सेल ऑलरेडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी जनरेट हो चुका था बॉडी में, करेक्ट है ना. दिस मेमोरी सेल्स दे जनरेट द एंटीबॉडी एंड इट किल्स द पैथोजन, ठीक है. तो यहाँ पे बहुत कम 2 स्टेप्स में पैथोजन मर रहा है, यहाँ पे तो एक एंटायर साइकिल चल रहा है. दैट इज व्हाई द प्राइमरी रिस्पांस इज अ लिटिल बिट स्लोअर एंड द सेकेंडरी रिस्पांस इज लिटिल बिट हायर, ठीक है. और जब आप इसको कंपेयर करोगे एंटीबॉडी परसेंटेज ड्यूरिंग प्राइमरी रिस्पांस, बेसिकली क्या है, बेसिकली आईजीएम रहता है, ठीक है. बेसिकली देयर इज आईजीएम एंड आईजीजी. आईजीएम का नंबर ज्यादा होता है एंड फॉलोड बाय आईजीजी, बट इन द सेकेंडरी रिस्पांस इफ यू लुक एट द आईजीजी प्रोपोर्शन, ये बहुत हाई हो जाता है. सो आईजीजी इज प्रोड्यूस्ड इन मच हायर नंबर एज कंपेयर टू आईजीएम, सो thus the secondary response is much quicker. क्लियर है. सो ये था प्राइमरी रेस्पॉन्स एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स. नाउ एंटीजन क्या है, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है, ठीक है, राइट, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है. The acquired immunity depends on antigen antibody reaction. Now how do you define antigen? Anything that is foreign to the body और इसका molecular weight greater than 10,000 daltons होता है, ठीक है. It shows antigenicity, that means antigen antibody binding करेगा and it can generate an immune response, ठीक है, which is known as your immunogenicity. So to be an antigen, organism or particle या फिर foreign जो भी एक एंटीजन बनना चाहता है, इट मस्ट हैव 2 प्रॉपर्टी, एंटीजेनिसिटी दैट मींस एंटीजन एंटीबॉडी का बाइंडिंग होना चाहिए एंड इम्यूनोजेनिसिटी दैट मींस इट मस्ट बी एबल टू जनरेट एन इम्यून रिस्पांस. क्लियर है. ओके, नाउ एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में, दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है, व्हिच आर केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन. एंटीबॉडीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन व्हिच आर केमिकली ग्लाइकोप्रोटीन. इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 heavy chains and 2 light chains. It is composed of 2 heavy chains and 2 light chains. They are bound by disulfide bonds. Total कितना, 16. Total disulfide bonds 16. Heavy chain में 2, light chain में 2, तो total कितना हो गया 4. ठीक है, right? So 2 heavy chains 50 किलो डाल्टन, एक वेरिएबल रीजन, एक वेरिएबल रीजन, ठीक है, करेक्ट है, राइट. और लाइट चेन में क्या है, लाइट चेन में एक वेरिएबल रीजन है, राइट, ठीक है. नाउ व्हाट आर दिस वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन क्या है, ये जो वेरिएबल रीजन है, दिस वेरिएबल रीजन कीप्स ऑन चेंजिंग एंड दैट इज व्हाई इम्यूनिटी का क्या चलता है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका इम्यून रिस्पांस बनने में हेल्प करता है, ठीक है. नाउ इन दिस वेरिएबल चेन, मैं वेरिएबल चेन का क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं, बिकॉज द वेरिएबल चेन इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, इट इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, वेयर एज जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंडिंग साइट है वो आपका सी टर्मिनल है. So this antibody has an N terminal and a C terminal. N terminal में जो variable chain है, that is the antigen binding site, whereas C terminal binds with the plasma membrane. Clear है, correct है, right? Now what are the types of antibody? IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. IgG maximum number मिलता है, the highest number of antibody is the IgG, followed by IgA, followed by IgM, followed by IgD and followed by IgE. समझ में आया? So IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. 1, 2, 3, 4, 5. There are total 5 types of antibodies that are present in our body. 5 types of antibodies that are present in our body. ठीक है? Now types of acquired immunity. There are 2 types of acquired immunity. ठीक है? एक आपका B lymphocyte based है, एक आपका T lymphocyte based है, right? The B lymphocyte based, it is known as the humoral immunity, ठीक है, and the immune response is through
the plasma cell and memory cell, right? B lymphocyte based humoral immunity, B lymphocyte based क्या immunity? Humoral immunity. इसका immune response is through what? Immune response is through plasma cell as well as memory cell. ठीक है? So B lymphocyte based humoral immunity, immune response is through plasma cell and memory cell. ठीक है? T lymphocyte based कौन है? Cell mediated immunity, cell mediated immunity, and the immune response is through 4 types of cells. T helper cells जो overall immune response को देखता है, T killer cells, it attacks the cancer cells, virus infected cells, T suppressor cells, it suppresses the T killer cells, and T memory cells, ठीक है? So B lymphocyte based humoral immunity, immune response is through plasma cell and memory cell, whereas cell mediated immunity is T lymphocyte based, right? And it is an immune response is through T helper cells, which is responsible for the overall immune response. T killer cells, just like natural killer cells, attacks the cancer cells or pseudo virus infected cells. T suppressor cells, it suppresses the level of T killer cells so that it does not attack the own, right? And obviously since एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज मेमोरी बेस्ड, तो आपको टी मेमोरी सेल्स भी दिख जाए. क्लियर है? क्लियर है? ओके. तो हमारा जो एक छोटा सा सब टॉपिक है टिश्यू ग्राफ्टिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. टिश्यू ग्राफ्टिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्वेश्चन आता है, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? इट इज बेस्ड ऑन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. इट इज बेस्ड ऑन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. इज बेस्ड ऑन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. एंड सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए 3 स्मॉल स्टेप्स आपको याद रखने हैं. सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए देयर हैज टू बी मैचिंग ऑफ द डोनर, there has to be matching of the donor, there has to be matching of the proteins present on surface of cells. ठीक है? These are called as major histocompatibility complex, MHC1 and MHC2, and also we have to administer immunosuppressants such as cortisol. ठीक है? Cyclosporin A, correct है? So we have to administer immunosuppressants. ठीक है? So matching of the donor, matching of proteins present on the surface of cells, major histocompatibility complex MHC1 and 2, and administering immunosuppressants. If we follow through this, तो organ transplant क्या होता है या फिर grafting में rejection नहीं आता. ठीक है? So basically if the organ transplant and grafting में rejection आता है, this is because of which part of the immunity? This is the acquired immunity, and specifically this is the cell mediated immunity. Clear है? Clear है? Very good. Coming to the next, right? आपका 2 सब टॉपिक है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. नाउ व्हाट आर द डिफरेंस, व्हाट आर द एग्जांपल्स? ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्टिव इम्यूनिटी प्रोटेक्शन के लिए रखता है, ठीक है, whereas पैसिव इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रीटमेंट. ठीक है? सो एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है? एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट. इन एक्टिव इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द host, but in case of passive immunity, ready-made antibodies from a source is introduced inside the host. ठीक है? So ready-made antibodies are injected in the host. ठीक है? Since in active immunity antibodies are produced by the host itself, तो ये जो रहता है active immunity, it stays for a very long time. Whereas passive immunity, since it is ready made, ठीक है, it stays for a short period of time. क्वेश्चन कहां से आता है कि what are the examples of active immunity and passive immunity? So the source of active immunity natural भी हो सकता है, artificial भी हो सकता है. एक्टिव इम्यूनिटी नेचुरल कब होता है? नेचुरली ऑकरिंग इन्फेक्शंस. जितना नंबर ऑफ इन्फेक्शंस होता रहेगा बॉडी में, जितना ही नंबर ऑफ इन्फेक्शंस होता रहेगा, उतना ही बॉडी में क्या होगा? इम्यून एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगा, एंड उतना ही बॉडी एक्टिवली क्या होगा? इम्यून कॉम्पिटेंट होगा. ठीक है? सो ऑल नेचुरल ऑकरिंग इन्फेक्शंस आर सोर्स ऑफ natural active immunity. All naturally occurring infections are source of natural active immunity. Whereas artificial active immunity कौन होगा? वैक्सीन्स जब हम लोग एडमिनिस्टर करते हैं तो बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, राइट? सो दस वैक्सीन इज अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. कम टू दिस, यहाँ पे भी सोर्स क्या है? नेचुरल है as well as आर्टिफिशियल है. नेचुरल भी है as well as आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी भी होता है. नेचुरल क्या है? नेचुरल में आपका आईजीए, राइट? कोलेस्ट्रम में भर के आईजीए है.
तो आईजीए कौन प्रोड्यूस कर रहा है? आईजीए तो कोल्स्ट्रम में मदर के बॉडी से आ रहा है, लेकिन वो इन्फेंट के पास जा रहा है ना, तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द इन्फेंट, ठीक है। सिमिलरली आईजीजी होगा तो मदर के प्लेसेंटा से भी ट्रांसमिट हो सकता है। सो नेचुरली ऑकरिंग पैसिव इम्यूनिटी और आईजीए कोल्स्ट्रम, राइट, आईजीजी थ्रू प्लेसेंटा, ठीक है, राइट। एंड आपका जो आर्टिफिशियल है, रेडीमेड आर्टिफिशियल है, एंटीवेनम इंजेक्शन, टिटेनस इंजेक्शन, ठीक है, टिटेनस इंजेक्शन, राइट, ये क्या है? ये यार रेडीमेड है, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज है which are directly injected into the patient, and since ये रेडीमेड है तो बेसिकली ये क्या है? अल्टीमेटली दिस इज फॉर प्रोटेक्शन, दिस इज फॉर ट्रीटमेंट। क्लियर है? क्लियर है? सो दिस आर द सिंपल डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोर्सेस में ध्यान दीजिएगा, उधर से ही क्या होता है? सोर्सेस में से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दी वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। Vaccination and immunization. Now, vaccination and immunization, they are both based on the principle of memory of the immune system. Memory of the immune system. ठीक है कि what is vaccine? A preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated weakened pathogen is introduced. ठीक है, बॉडी के अंदर में जो पैथोजेंस है उसका प्रोटीन, उसका वीकेंड फॉर्म, उसका डेड फॉर्म, ठीक है, बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो बॉडी में जब इंट्रोड्यूस किया गया, ये क्या है? दिस इज कैपेबल ऑफ एंटीजेनेसिटी एज वेल एज इम्यूनोजेनेसिटी। अल्टीमेटली बॉडी एक इम्यून रिस्पॉन्स देगा। दिस ट्रिगर्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड जनरेट्स मेमोरी बी एंड टी सेल्स, ठीक है। ऑन सब्सिक्वेंट ये क्या हो गया? इसने एंटीबॉडी प्रोडक्शन भी कर लिया और मेमोरी सेल्स भी जनरेट कर लिया। अगर अब एक्चुअल में वो पैथोजेंस आ जाए, अगर एक्चुअल में जब वो पैथोजेंस आ जाए ऑन सब्सिक्वेंट एक्चुअल इंफेक्शन, the memory cells recognize the pathogen quickly and mount a massive secondary response, तो secondary response से एक्चुअली में खत्म हो जाता है। इसलिए वैक्सीनेशन करने से जब ओरिजिनल पैथोजन आता है तो बॉडी को कुछ, हमको कुछ मालूम नहीं चलता, लेकिन बॉडी ऑलरेडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स से उसको खत्म कर रहा है। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, राइट। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक वैक्सीन्स, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, क्वेश्चन बेस्ड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, मॉडर्न मेथड्स में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इट अलाउज द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, ठीक है। एग्जांपल हेपेटाइटिस सी वैक्सीन फ्रॉम यीस्ट, करेक्ट है। सो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है, बट अल्टीमेटली मेरे को क्या याद रखना है कि इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, ठीक है। अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और इनएक्टिवेटेड weakened pathogen or vaccine is introduced, it triggers antibody production and generates memory B and T cell. Thus, on subsequent attack by the actual pathogen, already body के memory को मालूम ही है, acquired immunity को मालूम ही है कि ये वाला कौन है, तो जब ये आता है तो कौन सा immune response दिया जाता है? Secondary immune response, and it is killed off, ठीक है। Okay, right. अभी टाइप्स ऑफ वैक्सीन में इफ यू लुक द टाइप्स ऑफ वैक्सीन, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स होता है, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ होल ऑर्गेनिजम्स होता है, जिसमें किल्ड, वीकेंड और एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को किल करके वीकेंड या फिर एटेन्यूएटेड करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में किसका किसका वैक्सीन आ जाएगा? टाइफॉइड, कोलेरा, रेबीज, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, जो इन्फ्लुएंजा में आता है, फिर स्मॉल पॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है, राइट। सो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में कौन कौन आएगा? वैक्सीन फॉर टाइफॉइड, वैक्सीन फॉर कोलेरा, वैक्सीन फॉर रेबीज, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी एंड स्मॉल पॉक्स। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में आपको क्या क्या मिलेगा? जहां पे आपका यूटिलाइजेशन ऑफ यूनिट वेक्टर्स यूटिलाइज करते थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, राइट, जिसमें हेपेटाइटिस बी होस्ट कौन सा था? यीस्ट। हेपेटाइटिस बी वाला होस्ट कौन सा था? यीस्ट। टॉक्सॉइड्स जैसे डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस के लिए, डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टिटेनस के लिए आपका यूटिलाइज होता है, राइट। एंड आपका जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है, मॉडर्न वैक्सीन है, जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन वाज दिस वन, कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन में आपको, राइट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी अलाउइंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी आता है। समझ में आया कि नहीं है? So these are the type of vaccines that are present, first generation, second generation
एंड थर्ड जनरेशन। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, क्वेश्चंस आने का चांसेस है, बी वेरी वेरी केयरफुल। लास्ट यहाँ पे एक टॉपिक रहता है, दैट इज एलर्जीज। एलर्जीज क्या है? अगेन it is an immune response but at an exaggerated level. It is an exaggerated response of the immune system, right, which ultimately causes a harm to the body itself. ठीक है, right? So when you look at the allergies, it is the exaggerated response of the immune system to certain antigens which are present in the environment called allergens. So the particles or the ones responsible for creating allergies are allergens. This include pollens, dust mites, animal dander, certain foods. ठीक है, what are the antibodies produced? The antibody produced in the body is IgE type. ठीक है, right? Allergens causes the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells. ठीक है, ये होता क्या है? Allergens causes the release of chemicals like histamine and serotonin from the mast cells which causes sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing. ठीक है, समझ में आया? So होता क्या है, चक्कर होता क्या है कि जब एलर्जीज आते हैं, इनिशियली व्हेन IgE इनिशियली जब होता है ना, right, initially if the mast cells are not sensitized, the response will not be there. But what happens, ठीक है, कि in certain cases क्या होता है ना, body क्या होता है ना, this at a certain point of time they start to produce certain proteins. These are called as an IgE binding proteins. और ये IgE binding proteins कहाँ पे जाके लगता है? मसल्स में लगता है। ठीक है, मसल्स में जाके लगता है। तो when the allergens come and the IgE is produced, the IgE goes and bind to the IgE binding protein, ठीक है, which ultimately causes the rupture of the mast cell and thus histamine and serotonin are released. ठीक है, histamine and serotonin are released, which ultimately causes sneezing, watery eyes, running nose, difficulty in breathing. ठीक है, now आप diagnosis क्या कर सकते हो? Exposure to injection of suspected allergens, reactions that are studied. ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो कि whether you are allergic to not. जैसे हम बोलते हैं ना कि there are we are certain dust allergies, आजकल बहुत कॉमन है डस्ट एलर्जीज। जब छोटे थे तब हम लोग को डस्ट एलर्जी बोल के कुछ होता नहीं था, मैक्सिमम we used to play, right? But as we grow old, अभी जहां पे भी जाओ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एलर्जी कौन सा है? डस्ट एलर्जी। व्हाई? बिकॉज पहले मस्ट सेल सेंसिटाइज नहीं था, अभी क्या है? सेंसिटाइज है। पहले बहुत सारा कुछ खाना खाते थे, लेकिन अभी आपको मालूम चल रहा है कि यू ईट समथिंग एंड यू आर एलर्जिक टू दैट। व्हाई? बिकॉज वो IgE बाइंडिंग प्रोटीन पहले नहीं था, बाद में प्रोड्यूस हुआ एंड बिकॉज ऑफ दैट द मस्ट सेल्स गॉट सेंसिटाइज्ड, तो नाउ योर बॉडी इज बिकमिंग एलर्जिक। ठीक है, तो डायग्नोसिस इसमें क्या आता है ना कि सर्टेन टेस्ट रन किए जा सकते हैं, सर्टेन केमिकल्स रन किए जा सकते हैं कि वेदर योर बॉडी इज एलर्जिक और नॉट, उसके बाद ही आपको प्रोग्नोसिस दिया जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, नाउ ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट कैसे होगा? ट्रीटमेंट एंटीहिस्टामाइंस, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड शॉट्स। ठीक है, सो एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड इंजेक्शंस अगर ये देते हैं, एपिपेन करेक्ट है, स्टेरॉइड्स रहता है, ठीक है, तो आप एलर्जिक रिएक्शन से बच सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, सो दिस वाज द एलर्जिक रिएक्शन। उसके बाद क्या आता है? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी, व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी? ऑटो इम्यूनिटी में क्या है? ठीक है, राइट, हम लोग का तो क्या था ना, हम लोग का इम्यूनिटी क्या था? इट वाज मेमोरी बेस्ड which was evolved in higher vertebrates based on the ability to differentiate of foreign organism and between us, right? ठीक है, but sometimes what happens, ठीक है, sometimes due to genetic and other unknown reasons, the body attacks cell cells. Body क्या attack करता है? Body attacks the cell cells. This results in the damage to the body. And is called autoimmune disease. It is called as autoimmune disease. ठीक है, so कभी-कभी due to genetic and unknown reasons, correct है, right, the body starts to attack the cells which causes the autoimmune disease. And हमारे यहाँ पे एग्जांपल एक याद रखना है, rheumatoid arthritis, which causes the autoimmune diseases. क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपका lymphoid organ आता है। Now lymphoid organ are primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. ठीक है, अभी lymphoid organs काम क्या करता है? lymphoid organs, ठीक है, right, lymphoid organs are part of the immune system. ठीक है, part of the immune system which are responsible for immunity. How I am saying you responsible for immunity? ठीक है, so primary में red bone marrow, thymus आता है, ठीक है, right,
which are responsible for the formation, proliferation and maturation of lymphocytes. ठीक है, these are responsible for the formation, proliferation and maturation of lymphocytes. बोले तो B lymphocyte and T lymphocyte. ठीक है, B lymphocyte humoral immunity, T lymphocyte cell based immunity, types of acquired immunity. तो अल्टीमेटली पूरा हमारा इम्यून सिस्टम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लिम्फोइड ऑर्गन्स. whereas secondary lymphoid organs, they provide a place where interaction with the pathogens are occurring. Clear hai? Right. So when you look at the primary lymphoid organs such as bone marrow and thymus, immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Immature lymphocytes differentiate into antigen sensitive lymphocytes. Bone marrow, main lymphoid organ. All blood cells including lymphocytes are produced here. B cell maturation, very very important, याद रखिएगा, B cell maturation occurs here. Thymus, located near the heart, beneath the breastbone, large at birth and reduces with age. T cell maturation occurs here. ठीक है, तो ये thymus gland है. Thymus located near heart, beneath the breastbone, it is large at birth and reduces with age, and T cell maturation occurs here. Whereas the secondary lymphoid organs such as the spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches, appendix, it provides the site for interaction of lymphocytes with antigens, leading to proliferation and differentiation into effector cells. Clear hai? So secondary lymphoid organs such as spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches, small intestine, appendix provides sites for interaction of lymphocytes with antigens, leading to proliferation and differentiation into effector cells. Clear है? ठीक है, right? Now certain दे के रखा है कि spleen जिसे these are large bean shaped organ, they filters the blood and they trap the blood-borne microorganisms, has lymphocytes and phagocytes, and it is the reservoir for erythrocytes. Whereas lymph nodes, these are small solid structures along the lymphatic vessels, they trap microorganisms, antigens entering the lymph tissue fluid, activate lymphocytes present there. Then सबसे important, बॉडी में सबसे ज्यादा कौन है? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू या फिर माल्ट. इट इज कोटेड विद द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट्स, रेस्पिरेटरी में, डाइजेस्टिव में, यूरोजेनिटरी में, एंड कंस्टिट्यूट्स 50% ऑफ द lymphoid tissue and constitutes 50% of the lymphoid tissue. So this part is very very important. This is very very important. इसको पूरा याद करिएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा, क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बन जाएगा. So these are your lymphoid organs. क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, तो यहां तक हम लोग का क्या होता है, यहां तक हम लोगों का इम्यूनिटी खत्म होता है, यहां तक हम लोग का इम्यूनिटी खत्म होता है, राइट. इसके अलावा राइट यहाँ पे हमको दो चीज एक्स्ट्रा देखना है. एक होता है आपका एड्स. ठीक है, एड्स के बारे में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज कैंसर. नाउ एड्स इज द एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी. इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ वायरस रेट्रोवायरस. ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इनके पास, राइट. इट वाज फर्स्ट डिटेक्टेड इन 1981. It was first detected in 1981. ठीक है, so acquired immunodeficiency syndrome, it is caused by human immunodeficiency virus. It belongs to the group of virus retroviruses. It was first detected in 1981. अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर देखें ना, अगर आप इसका एक स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, राइट. सो ये जो आपका जो वायरस है, ये जो आपका वायरस है, ठीक है, ये इसका तो जेनोमिक मटेरियल 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, राइट. एंड इसके पास 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है. एक इंटीग्रेस है, ठीक है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, ठीक है, और एक क्या है? प्रोटीएस है. सो यू हैव द प्रोटीएस, यू हैव द इंटीग्रेस एंड यू हैव द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. ठीक है, करेक्ट है. एंड इट इज कवर्ड बाय 2 प्रोटीन कवरिंग व्हिच आर कैप्सिड्स. तो प्रोटीन का कैप्सिड भी है, एंड व्हिच इज एंड यहाँ पे क्या है? स्पाइक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, GP120 स्पाइक प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, राइट. तो ये जाके कहाँ बाइंड होता है? ये CD4 रिसेप्टर्स में बाइंड होता है, CD4 रिसेप्टर्स ऑन द मैक्रोफेजेस. सो दिस HIV that affects whom? It affects the macrophages. ठीक है, okay, right. So it is the deficiency of the immune system acquired during the lifetime. It is not congenital. ये congenital नहीं है, very very important, ये याद रखिएगा. It is not congenital. ठीक है, so it is the deficiency of immune system acquired during this non-congenital. And what do you mean by syndrome? It is group of symptoms.
What is the causative agent? This is the human immunodeficiency virus, a retrovirus which has a RNA genome envelope. ठीक है. Transmission क्या होता है? Sexual contact with an infected person, transfusion of contaminated blood products, sharing infected needles, intravenous drug abusers, from infected mother to child through placenta, and it is not spread by touch, physical contact, sharing meals. It only spreads through body fluids. Only spreads through body fluid. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा. करेक्ट है. नाउ when you look कि जब ये मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, ये इन्फेक्ट कैसे करता है? वेरी सिंपल है. ठीक है, बट वेरी हाईली इफेक्टिव. when the HIV enters the body, the virus enters the macrophages. ठीक है, which is acting as the HIV factory. It has CD4 receptors. बॉडी में ये CD4 रिसेप्टर, ये CD4 रिसेप्टर रहता है. CD4 रिसेप्टर दो ही जगह पे मिलेगा आपको, मैक्रोफेज में एज वेल एज टी हेल्पर सेल में, तो अल्टीमेटली दिस HIV दिस गोज एंड अटैक्स, बाइंड्स विद द CD4 रिसेप्टर, बाइंड करेगा एंड अल्टीमेटली CD4 रिसेप्टर मिलेगा कहां पे? मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल्स में, which are both are responsible for the immunity of our body. करेक्ट है. तो जब ये वहां पे बाइंड करता है, the viral RNA replicates to form viral DNA using the enzyme reverse transcriptase को यूज करके viral RNA, right, viral DNA बनता है. उसके बाद the viral DNA incorporates into the host cells DNA, integrates enzyme लेके and directs the infected cells to produce virus particles. उसके बाद the HIV, the HIV enters the helper T lymphocytes, T helper cells and replicates and produce progeny viruses. ठीक है, progeny viruses released, they attack other T helper cells, and thus there is progressive decrease in the number of T helper cells. और जब T helper cells ही नहीं रहता है, which is responsible for the overall immune response, the body becomes susceptible to attacks from other pathogens. ठीक है, the body becomes susceptible to attack from other pathogens. तो यहाँ पे चक्कर हुआ क्या? जो HIV वायरस है, that is actually making the immune system go down, and since your immune system is go down, now you are susceptible for attacks by other viruses, pathogens, and that is why you die with a group of symptoms. ठीक है, right? And severe immunodeficiency results, person becomes susceptible to opportunistic infections, bacteria like mycobacterium, viruses, fungi, and parasites like toxoplasma. They start to attack the body, and thus एक पेशेंट्स में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिम्टम्स दिखने को मिलेगा, एंड thus it becomes a syndrome. क्लियर है, राइट? सो दिस इज हाउ the HIV virus infects the cell and how AIDS occur. ठीक है. The most dangerous thing is there is a time lag. The dangerous thing is what? There is a time lag. क्या time lag है? कि infection and appearance of symptoms. इन्फेक्शन के बाद सिम्टम्स आने में एक टाइम लैग हो जाता है, एंड इट रेंजेस फ्रॉम फ्यू मंथ्स टू मेनी इयर्स, 5 to 10 years. इन्फेक्शन के 5 से 10 साल बाद आपका सिम्टम्स आना चालू हो सकता है, एंड बाय दैट टाइम इट इज ऑलरेडी लेट. है कि नहीं है? करेक्ट है. डायग्नोसिस कैसे होता है? एलाइजा, एंजाइम इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, राइट? डिटेक्शन टेस्ट एलाइजा है. कॉन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग. डिटेक्शन टेस्ट कौन है? डिटेक्शन टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एलाइजा है. whereas confirmatory टेस्ट कौन है? confirmatory टेस्ट इज योर वेस्टर्न ब्लॉटिंग. ठीक है. सिम्टम्स बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, opportunistic infections and some leading to cancer भी हो सकता है. ट्रीटमेंट, antiretroviral drugs are partially effective. They can prolong life but cannot prevent death. तो HIV या AIDS के लिए death is the final. Now how can you prevent? By education and awareness. ठीक है. हमारे पास नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, नेको है, ठीक है, एनजीओस है. educating the people कि what is this, how it is what are the most common ways of transmission. ठीक है. तो अगर हम लोग प्रिवेंशन कर दे, क्योर तो है ही नहीं, है कि नहीं है, तो प्रिवेंशन कर दे तो इसका स्टॉपेज कर सकते हैं. सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, यूटिलाइजिंग कॉन्डम्स, एंश्योरिंग सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्क्रीनिंग ऑफ द ब्लड मस्ट बी, discouraging drug abuse, using disposable needles, regular checkups for HIV in susceptible population. So these are the certain steps
These are the certain steps that can mitigate this epidemic, ठीक है, which has already taken over 25 million lives, ठीक है, and the number is growing. Clear है? ठीक है. So this was all about your AIDS. उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है कैंसर, ठीक है. दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस, ठीक है. कैंसर, राइट नाउ द इंसिडेंस ऑफ कैंसर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग इन आवर लाइफ, ठीक है. नाउ कैंसर में पहला चीज तो आपको देखना है कि एक नॉर्मल सेल और एक कैंसरस सेल में डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल सेल एंड अ कैंसरस सेल? और नॉर्मल सेल में क्या होता है? कंट्रोल्ड सेल डिवीजन, वायरस कैंसरस सेल में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है, ठीक है. एक नॉर्मल सेल में कंट्रोल सेल डिवीजन होता है, एक कैंसरस सेल में अनकंट्रोल सेल डिवीजन होता है. एक नॉर्मल सेल शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन. मतलब कि अगर कहीं से भी आपका सेल और कहीं से भी आपका सेल रीजेनरेट हो रहा है, ये जब रीजेनरेट होके होके पुराने सेल के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसका रीजेनरेशन स्टेप बंद हो जाता है. बट in case of a cancerous cell, right, when that cell is growing, even if it comes in contact with the old cells that are present, it does not stop to grow, it keeps on growing. So this is the property of contact inhibition. Contact inhibition is present in normal cell, that keeps a check on its growth, whereas contact inhibition is absent, तो ये uncontrollable growth होता है. And thus normal cells are non-invasive, whereas cancerous cells are invasive. Normal cells are mortal. Normal cells are mortal, whereas cancerous cells are immortal. Normal cells mortal कैसे होता है कि हमारे पास क्या था? नॉर्मल सेल्स के आपके क्रोमोसोम के एंड में क्या रहता है ना, आपका क्रोमेटिन, आपका टेलोमेरिक सीक्वेंस रहता है ना. टेलोमेरिक सीक्वेंस गेट रिड्यूस्ड आफ्टर ईच सेल डिवीजन. सो बाय द टाइम ऑन एन एवरेज एक सेल 50 टाइम अगर डिवाइड कर जाता है, उसके बाद टेलोमेरिक सीक्वेंस गायब हो जाता है. टेलोमेरिक सीक्वेंस गायब होने का मतलब क्या है? द सेल विल नाउ बी सेंट टू अ प्रोग्राम्ड सेल दैट इज कॉल्ड एज एपोप्टोसिस. तो सेल मरता है. Whereas in case of cancerous cell, an enzyme called as telomerase that becomes active. Telomerase क्या करता है? Even after every cell division, the telomeric sequence remains intact. तो अगर आपका telomeric sequence intact है, तो the cell will not be sent for cell death, ठीक है, apoptosis. तो अल्टीमेटली सेल क्या हो गया? इमॉर्टल हो गया. तो इन्फिनिट टाइम्स तक भी वो अगर वो रेप्लिकेट कर ले, वो मरेगा नहीं. एंड thus cancerous cells are immortal, whereas non-cancerous cells are mortal. समझ में आया? अभी कैंसर कॉजिंग होता क्या है? देयर आर सब्सटेंसेस और एजेंट्स दैट कॉज कैंसर. दीज आर नोन एज कार्सिनोजेंस. दीज आर नोन एज कार्सिनोजेंस. नाउ कार्सिनोजेंस कैन बी फिजिकल कार्सिनोजेंस, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज. केमिकल कार्सिनोजेंस सच एज टेराटोजेंस. बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस सच एज वायरस. ये करता क्या है? ये नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है. ये नॉर्मल सेल का ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है. हाउ द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स? इट अफेक्ट्स, राइट, ये कार्सिनोजेंस करता क्या है? ये इफेक्ट करता है किसको? द फैक्टर्स दैट कंट्रोल सेल डिवीजन. द फैक्टर्स दैट कंट्रोल सेल डिवीजन सच एज द प्रोटोऑन्कोजेंस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. ये प्रोटोऑन्कोजेंस को ऑन्कोजेंस में कन्वर्ट कर देता है, एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स व्हिच आर नथिंग बट आवर सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, इनको गड़बड़ कर देता है. ठीक है, तो प्रोटोऑन्कोजेंस कन्वर्टिंग इनटू ऑन्कोजेंस एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में भी जब म्यूटेशन चला आता है, अल्टीमेटली दिस कॉजेस द ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन. और एक सिंगल सेल ऐसे अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर लेता है. एक सिंगल सेल गोस फॉर अनकंट्रोल्ड डिवीजन. दीज आर कॉल्ड एज द नियोप्लास्टिक सेल्स. दीज आर कॉल्ड एज द नियोप्लास्टिक सेल्स. जब तक नियोप्लास्टिक सेल्स कैप्सुलेटेड फॉर्म में रहेगा, जब तक नियोप्लास्टिक सेल्स एक कैप्सूल के अंदर में रहेगा, वो एक ही जगह पे ग्रो करेगा. इट विल नॉट travel into other directions. This stage is the benign stage or the benign tumor. But by any chance अगर ये कैप्सूल फट जाता है, ये कैप्सूल अगर फट जाता है, so through blood vessels there will be the spread of the tumor cells which is called as metastasis, right? And thus जहां ब्लड इसको लेके जाएगा, वहां नया ट्यूमर फॉर्म होगा. And thus the cancer has become what? Malignant. Thus the cancer has become what? Malignant. ठीक है, तो ये था हम लोगों का कैंसर. ठीक है, ये था हम लोग का कैंसर. नाउ हाउ वुड यू डिटेक्ट इट? बायोप्सी, most important, biopsy, histopathological studies. A piece of suspected tissue is cut, stained and examined under microscope. Blood and bone marrow test, right? अगर increased cell count है in case of blood cancer, leukemia, उससे मालूम चलता है. Imaging techniques such as radiography, X-rays, CT, computed tomography and MRI, magnetic imaging resonance imaging. इसमें से रेडियोग्राफी,
कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये अल्टीमेटली एक्सरे कॉज ऑफ कैंसर है, तो इसको अवॉइड ही करते हैं. द मोस्ट सेफेस्ट टेक्निक इज योर MRI. दिस इज द सेफेस्ट टेक्निक. ठीक है, राइट. अच्छा, CT uses X-rays for 3D images, right? MRI uses magnetic field and non-ionizing radiations. Antibodies against certain cancer-specific antigens. जितना टेक्निक बढ़ रहा है, molecular biology techniques to detect genes in individuals with inherited susceptibility. ठीक है, so these are the certain techniques through which cancer can be detected. ठीक है, biopsy, histopathological studies, bone marrow, blood and bone marrow tests, imaging techniques such as radiography, CT scan, MRI. ठीक है, antibodies against cancer specific and molecular biology techniques which are utilized for detection of the cancers. ठीक है, and ultimately treatment क्या है? Treatment basically everyone goes for surgery, removal of the tumor mass, लेकिन इसमें स्प्रेड होने का चांस बहुत रहता है. ठीक है, रेडियोथेरेपी, tumor cells are irradiated lethally, taking care to protect the surrounding tissues. Chemotherapy, ठीक है, chemotherapy use of cytotoxic drugs to kill cancer cells. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं ना, रेडियोथेरेपी एंड केमोथेरेपी का मिक्सचर करते हैं, but they have huge side effects. They have side effects such as hair loss, anemia, often used in combination. Immunotherapy upcoming है, using biological response modifiers like as alpha interferon, जैसे हम लोग ने बोला था, which activates the immune system to help destroy the tumor. So these are the certain techniques that are utilized for the treatment of cancer. These are the certain techniques that are utilized for the treatment of cancer. Clear है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनता है इससे. ठीक है, अभी तक HIV और कैंसर में लास्ट 2-3 साल से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, सो इस साल आई एम गेसिंग कि इधर से ही क्वेश्चन आएगा. क्लियर है? सो बी वेरी वेरी केयरफुल. एंड लास्टली यहाँ पे क्या आता है? ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक क्वेश्चन, या फिर मैट्रिक्स में क्वेश्चन आता है. ठीक है, नाउ commonly abused drugs includes opioids, cannabinoids, coca alkaloids. ठीक है, opioids, cannabinoids, coca alkaloids, majority of which are obtained from flowering plants and some from fungi. So majority of them are obtained from flowering plants and some from fungi. When you come to opioids, very very important, याद रखने का, specific opioid receptor कहाँ पे present है? CNS and gastrointestinal tract. कहाँ पे present है? Specific bind to specific opioid receptors present in the CNS and gastrointestinal tract. Direct question. उसके बाद इसका सोर्स क्या है? पॉपी प्लांट. पेपेबर सोमनिफेरम का क्या? लेटेक्स यूज करते हैं. पेपेबर सोमनिफेरम का क्या यूज करते हैं? लेटेक्स. एग्जांपल्स क्या क्या है? हीरोइन और स्मैक. दिस इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फाइन. ठीक है, व्हाट आर द एग्जांपल? हीरोइन और स्मैक, व्हिच इज केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन. इट इज व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड. आप लेते कहते हो, मोड ऑफ इंटेक स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन सॉरी, राइट. Effect, it is a depressant, very very important, it is a depressant, it slows down body function. Morphine from the latex is an effective sedative and a painkiller. It is also used in post surgery, लेकिन इसका abuse भी होता है. Clear है? Right? So the commonly abused drug, they include opioids, cannabinoids, coca alkaloids. Majority is obtained from flowering plants and some from fungi. Opioids, they bind to specific opioid receptor body में कहाँ पे present है? CNS and your gastrointestinal tract में present है. कहाँ से मिलेगा? पॉपी प्लांट, पॉपी बर्ड सोमनिफेरम के लेटेक्स से, राइट. एग्जांपल हीरोइन और स्मैक क्या है? केमिकली डाइएसिटाइल मॉर्फिन, व्हाइट ओडरलेस बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है. मोड ऑफ इंटेक क्या है? स्नॉटिंग या फिर इंजेक्शन. इफेक्ट क्या है? इट इज अ डिप्रेसेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा. इट इज अ डिप्रेसेंट एंड इट स्लोज डाउन दी body function. Morphine from the latex is an effective sedative painkiller used post surgery, लेकिन इसका abuse भी होता है. ठीक है, तो ये था आपको opioids. Next, cannabinoids interact with cannabinoid receptor. कहाँ पे present है? Mainly present in the brain. कहाँ से है? Inflorescence of cannabis sativa plant, right. इसका flower tops भी use करते हैं, leaves, resins भी use करते हैं. क्या क्या बनता है इसका सब products? मारियोना, हाशीश, चरस, गांजा. लेते कैसे हैं? इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन. इफेक्ट क्या है? व्हाट इज इट इफेक्ट? अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम,
and also known for effects on its mood and perception, right? So cardiovascular system पे effect करता है, moods पे, effects पे, perception of reality क्या कर देता है, change कर देता है, ठीक है, hallucination, ठीक है. Next comes your coca alkaloids, very important, coca alkaloids or which is commonly called as cocaine. सोर्स कहां पे है, कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, ये नेटिव टू साउथ अमेरिका है, ठीक है. मोड ऑफ इनटेक, इट इज यूजुअली स्नॉटेड. इफेक्ट क्या है, इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन. डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है. इट इंटरफेयर्स with the transmit of neurotransmitter dopamine, interferes with the transport of neurotransmitter dopamine. It is a potent stimulant, action on the CNS, producing euphoria, increased energy, right? ये CNS पे इफेक्ट करता है, यूफोरिया प्रेजेंट करता है, इंक्रीज एनर्जी करता है, excessive doses causes hallucination, right? Crack is also a form of cocaine. समझ में आया? So coca alkaloids, cocaine, सोर्स क्या है, कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका. It is native to South America. Mode of intake easily snorted है. In effects, very important, interferes with the transport of neurotransmitter called dopamine. Potent stimulation action on CNS, producing euphoria and increased energy, and excessive doses causes hallucination, and crack is also form of a cocaine. ठीक है? So these are the very important parts. Direct point by point lined है. इसको पढ़िए 4-5 बार, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा. One question will not be missed. ठीक है. Coming to this part, right? Other abuse substances, atropa belladonna, ठीक है, datura, hallucinogenic properties होता है, barbiturates, amphetamines, benzodiazepines, used as medicines for mental illness, depression, insomnia, but are often abused. LSD, lysergic acid diethylamide from fungus, Calviceps purpurea, ठीक है. So LSD, lysergic acid diethylamide from fungus, Calviceps purpurea, ये भी क्या होता है ना, ये भी अब्यूज किया जाता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, वन ऑफ द साइलेंट किलर इन ड्रग अब्यूज इज योर स्मोकिंग. इसका सोर्स क्या है, टोबैको लीव्स. दिस आर टोबैको लीव्स. एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, निकोटिन व्हिच इज एन अल्कलॉइड. एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, निकोटिन व्हिच इज एन अल्कलॉइड. मोड ऑफ इनटेक क्या है, स्मोकिंग, च्यूइंग, स्नफ. क्या इफेक्ट करता है, स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन, राइट? इट स्टिमुलेट्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉरएड्रेनलिन. It increases the blood pressure. क्या करता है, it increases the blood pressure and heart rate, ठीक है. But ये ultimately it is associated with cancers, lung, urinary bladder का, throat का. Apart from that, bronchitis, emphysema, coronary, heart disease, gastric ulcer, ठीक है. Smoking also increases carbon monoxide content in the blood, reduces concentration of hemoglobin and oxygen deficiency create करता है. समझ में आया कि नहीं है, right? And smoking also leads to अदर हार्ड ड्रग अब्यूज, ठीक है. ये प्रॉपर ड्रग है, बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, राइट? पीपल डू नॉट इवन कंसिडर इट एज अ ड्रग, बट इट्स अ प्रॉपर ड्रग, ठीक है. एंड एक्सेसिव यूसेज ऑफ स्मोकिंग अल्टीमेटली लीड्स टू और लीड्स टू द पाथवे ऑफ, राइट, अदर ड्रग अब्यूजेस. क्लियर है? क्लियर है, ठीक है, राइट. नाउ एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस आते नहीं आते फिर भी, राइट, वी वोंट टेक सम चांसेस, ठीक है. एडोलेसेंस एंड ड्रग अब्यूज में एडोलेसेंस वाला एज 12 to 18 इयर्स इज वल्नरेबल फेज. कॉजेस यहाँ पे ड्रग अब्यूज का चांसेस इसी जगह पे क्यों होता है, इसी जगह पे क्यों होता है? बिकॉज क्यूरियोसिटी, नीड फॉर एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, पीयर प्रेशर, स्ट्रेस रिलीफ, family problems, unstable family structure, these drive these people to go for drug and alcohol abuse, right? Which causes addiction, which causes dependence. What is addiction? It is the psychological attachment to effects like euphoria, temporary well-being associated with drugs and alcohol. It drives people to take them even when they are not needed, और self destruction create करता है, ठीक है. dependence क्या होता है, dependence क्या होता है? It is the tendency of the body to manifest unpleasant withdrawal symptom, कि अगर तुम मेरे को नहीं दोगे मैं मर जाऊंगा, ये बॉडी बोलता है, ठीक है. सो it is the tendency of the body to manifest unpleasant withdrawal system if regular abuse is abruptly discontinued. It may cause shakiness, anxiety, nausea, sweating, and it leads user to resume use. Dependence leads to user to ignore social norms. ये ultimately डकैती, मर्डर, ये सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं. करेक्ट है, राइट? ठीक है, right? What are the effects of drug and alcohol abuse? Immediately reckless behavior, vandalism, violence चला आता है.
लॉन्ग टर्म डैमेज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इधर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, liver cirrhosis due to alcohol, right? Drop in academic performance, social isolation, depression, fatigue, aggressive behavior, financial issues, health complications चला आता है. Intravenous drug abusers, intravenous drug abusers are the risks of infections like AIDS and hepatitis B, right? Use of pregnancy also affects the fetus, ठीक है. Misuse of drugs, ठीक है. Narcotic, analgesics, anabolic steroids, right? Doping होता है, करेक्ट है. एंड व्हाट आर द प्रिवेंशन? प्रिवेंशन इज अल्टीमेटली यहाँ पे क्या है ना कि दिस इज यू अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, एजुकेशन एंड काउंसलिंग, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, लुकिंग आउट फॉर डेंजर साइंस, सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ठीक है, करेक्ट है. सो प्रिवेंशन में राइट इट इज ऑलवेज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि दूसरों जो लोग एवरी टाइम राइट द pasture इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. हम जो करते हैं हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है. So it is not that ki the other person is looking cool, so I have to try. The other person is suffering mentally and he is getting relief from taking drug and alcohol abuse, so I'll also try. नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. The other side is not at all green. Specifically in case of this drug and alcohol abuse. समझ में आ रहा है कि नहीं है? So by avoiding undue pressure, by education and counseling, by seeking help from parents and peers, we might be able to prevent this from spreading deep into the society. Clear है? ठीक है. सो दिस वाज योर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज. थोड़ा लेंदी है चैप्टर, ठीक है. पूरा पॉइंट बाय पॉइंट यू गो थ्रू दिस entire summary that I have given, point by point, एक एक लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एक एक लाइन ऑफ पॉइंट जहां से क्वेश्चन आंसर है, सब यहाँ पे दिया गया है. रिवाइज इट 2-3-4 टाइम्स. वीडियोस, ये वीडियो देखो, कम एंड अटेम्प्ट द 90 क्वेश्चन. आई एम गारंटिंग यू एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नॉट इन दिस रिवीजन प्रोग्राम एज वेल एज नॉट इन नीट. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? मेरिट ऑलवेज हैज इज रिवार्ड. और बायोलॉजी में हायर मार्क्स स्कोर करने का एक ही चांस है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, ठीक है. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर. थैंक यू सो मच.